गुड मॉर्निंग। मैं तो तैयार हो गया हूँ और तैयार होने के बाद मैं और बयान जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। मैं तैयार हूँ, बयान तैयार नहीं हुआ है। ये देखो उसकी शक्ल देख के पता चल जाएगा कि तैयार नहीं है बयान। सो एनीवेज हमारा प्रोग्राम आज का ये है कि हम आज जो यहाँ ये जो बॉर्डर की जगह है फुशलिंग, यहाँ से हम निकलेंगे और पहुँचेंगे थिम्पू। ट्रैवल टाइम रहेगा हमारा अराउंड क्लोज टू 5 hours। Ready to check out from the hotel, waiting for the lift. Oh my god, lift is already full। सब सामान वामान लेके हम खड़े हुए हैं, गाइड आ गया है नीचे हमारा। ओके सो दैट्स आवर कार। ये देखिए, ये है बीटी रजिस्ट्रेशन भूटान टैक्सी। दैट्स अ ग्रीन नंबर प्लेट। प्राइवेट का है रेड कलर। BYD। लुक एट वियान। BYD का नाम सुन के और देख के भाई साहब पहुंचे हुए हैं पूरी इंक्वायरी करने। विद मी यान। ये है हमारा यहाँ का लोकल सिम कार्ड जो कि हमने डेटा के लिए लिया है। और हम 3 लोग यहाँ बैठ गए हैं पीछे सीट पे। एंड मॉम इज़ एट द बैक, क्योंकि हम तीनों बहुत ही प्रोबेबल कैंडिडेट हैं उल्टी करने वाले। ओके तो अभी हम एक दूसरी चेक पोस्ट है जहाँ पे कि हमें अपने पेपर दिखाने होंगे। तो जो हमारे साथ गाइड हैं वो सारे पेपर शो करेंगे और पासपोर्ट शो करेंगे। ओके सो दिस इज़ द चेक पोस्ट। सो इस चेक पोस्ट और जो हमने बॉर्डर वाली चेक पोस्ट हमने जो क्रॉस करी थी वहाँ पे, मतलब इन दो चेक पोस्ट के बीच में जो वेस्ट बंगाल से लोग आते हैं वो 24 आवर्स तक स्टे कर सकते हैं विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा SDF। कोई SDF पे करने की उनको ज़रूरत नहीं है और 24 आवर्स तक वो रह सकते हैं बिना कोई कॉस्ट पे किए। और फिर उनको वापस 24 घंटे में रिपोर्ट करना पड़ता है, बाहर जाते हैं एंड दे कैन कम बैक अगेन। सो आप अगर पुंछलिंग में स्टे कर रहे हैं तो आप उस दिन का SDF पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसी दो बॉर्डर्स के बीच में पड़ता है। जब पुंछलिंग आप क्रॉस करोगे और आगे फर्दर जाओगे तो उसका SDF काउंट होगा पर नाइट के हिसाब से। Century, uh, there is no like border distribution during 8th century. So a great man, so we used to say that he's from Pakistan, a great man from Pakistan. He came to Bhutan and he flourished Buddhism. So his name is Padmasambhava. So he was the first person who bring Buddhism in our country. So the main purpose for him to visit our country is in the eastern part of Bhutan. Here in Bhutan we have 20 districts. So in 20 districts in the eastern part of Bhutan, there's a district called Bumtang district. Over there, there's a local leader. So his soul was believed that his soul was being captured by the evil force. So in order to cure him, so he personally requested Guru Padma Sambhava to come to Bhutan and cure him. So Guru Padma Sambhava went all the way to Tibet and he came from the northern side of Bhutan. So upon reaching over there, so he subdued that evil force and it is believed that he done that protective teaching. Then after that he went and checked every corner of the country and he reached all this. So for us, this Bhutan is also called as the paradise for Guru Padma Sambhava. And in 17th century, so there's a great man from Tibet. So he also came to Bhutan and we consider him as the founder of Bhutan. And if you go to the monasteries, temples, hotels, you see him with a long beard like Punjab. You can see him with a long beard. Okay. And what was the religion before Buddhism? We are following Bonism. So I'll give me 2 seconds. कह रहे थे ना कितनी
चलो आओ देखें व्हाट इज़ दिस पॉइंट। of different types of stupa. We call it 8 types of stupa. And I'll give a short description about this one. Later, if you want to go washroom, the washroom is over that side. Okay. If you go washroom. So, the main reason for this building of this 8 types of stupa is to each stupa represents Buddha's event. So the first stupa it represents Buddha's birth. The last stupa is shaped in a bell, no? So this signifies that his Nirvana. Nirvana, he went to enlightenment. सो टुडे देयर इज़ सम स्पेशल डे। तो इसके जनरली जो लोग होते हैं आज के दिन यहाँ पे 108 चक्कर लगाते हैं। सो 108 चक्कर लगाने का हमारे पास तो टाइम नहीं है, बट हाँ चक्कर एक बारी लगा लेते हैं। और इसको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करते हैं, एंटी क्लॉक में नहीं करते। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फूल दिखा मेरे को, ऐसे ऊपर प्लेन सा डिज़ाइन है और जहाँ पे इसकी ओपनिंग है वहाँ पे ऐसे प्रिंटेड है। सो भूटान के अंदर ये हमारी दूसरी चेक पोस्ट है। कौन सी जगह है? विच प्लेस इज दिस? This is Wongka. वोंखा। Yeah. ओके, बस आई थिंक यही लास्ट चेक पोस्ट है, इसके बाद और चेक पोस्ट नहीं मिलेगी। Our car is in queue. So this is the entry stamp for Bhutan. ये और ये एंट्री का ये रेस्टोरेंट और कुछ खाने के लिए रुके हैं। मेरे को तो खैर बहुत ज़्यादा भूख है नहीं और भूख भी नहीं है, और प्लस थोड़ा सा मेरे को ये थोड़ा वॉमिटिश फील हो रहा था, तो फिर मैं तो अब खाऊंगा नहीं क्योंकि फिर वो पेट भर जाएगा और फिर दोबारा लगेगा, तो इट्स बेटर कि अवॉइड। मैंने थोड़ी अपनी मेडिसिन ले ली थी, होम्योपैथिक मेडिसिन मैं लेता हूँ, तो वो मैंने अपनी ले ली थी, तो उसको पीने के बाद मेरे को थोड़ा बेहतर लग रहा है। और अब ये लोग सब ऑर्डर कर रहे हैं और कुछ ऐसा सा यहाँ से नज़ारा दिख रहा है हमारा बाहर रेस्टोरेंट से। यहाँ से वीडियो कह रहा हूँ, यहाँ से व्यू नहीं दिख रहा उसका, डैम का जो वहाँ से दिख रहा था आपने। हाँ यहाँ से नहीं दिख रहा। हाँ यही दिख रहा है, माउंटेन क्लाउड्स। अभी ऊपर ही जाना है होपफुली। मस्त वाटरफॉल। हमने पहले भैया को बोला यार एक जगह वाटरफॉल था, तो हमने बोला रोक दो, उन्होंने कहा नहीं आगे एक और है अच्छा वाला, उस पर रोकेंगे। सो दिस इज़ द गुड वन। ओ हल्की हल्की बयान, हल्का हल्का वो आ रहा है ना। हाँ कहाँ रह गई जनता बाकी? अरे वो तो वहीं से फोटो लेने में लगे हुए हैं। जल्दी से पास से एक वीडियो बना दिया जाए। ओहो ये देखो, ये ऊपर से आता हुआ झरना ब्रिज का। अगर ओल्ड रोड से जाएंगे तो माउंटेन के ऊपर जाके फिर जाना पड़ेगा, ये नया ब्रिज बना है। अच्छा ओ अच्छा हुआ नीचे से आ गए। तो वो वाला 1 घंटा और एक्स्ट्रा है। अरे बाप रे बाप, अच्छा वो बच गए। अरे बाप रे बाप कितना गहरा है नीचे ये, वैसे इतना भी नहीं है। इतना भी है हैं? लेकिन इतना भी गहरा नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सर्वाइवल वाला, दैट्स सर्वाइवल इन द वुड्स। ओके सो द गाइड इज़ टेलिंग अस कि जो पुराना रास्ता है वो इस पहाड़ के ऊपर से जाता है, जो कि 1 घंटा और लेता है फालतू। और ये एक नया ब्रिज बना है यहाँ पे, एज यू कैन सी दिस इज़ द न्यू ब्रिज। इससे 1 घंटा हमारा टाइम सेव हो रहा है। ओह माय गॉड हमारी गाड़ी कहाँ चली गई? हाय हाय इतनी दूर वॉक करके जाना पड़ेगा। So over here, you can see this is Okay. tiger, this is snow lion,
This is And these are the dragon, mantras. and this is Garuda. Four mythical animal, Hmm. and this one is wind horse. And these are mantra. So it Okay. is believed that when the wind touch over here, this wind horse, it will carry this mantra. ये कहाँ भी है? वहाँ जाके मेन उसमें मिल रहा है ना वो। पहाड़ बहुत हरे भरे हैं, मतलब जैसे सिक्किम में पहाड़ दिखते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही है, मतलब पूरा एकदम लश ग्रीन अच्छे से। खैर ये तो थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड वाला एरिया है, बट अदरवाइज बिल्कुल ग्रीन पहाड़ है यहाँ पे। भूटान इज 70% फॉरेस्ट एरिया, और क्या है, कार्बन न्यूट्रल कंट्री। कार्बन न्यूट्रल कंट्री मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। दिल्ली से आने के बाद इतनी साफ हवा में सांस ली नहीं जा रही ठीक से, दिक्कत हो रही है सांस लेने में। चू ब्रिज 16th July 2018। ओके, सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर कार। चलो अब एक शॉर्ट वॉक के बाद अब चला जाए। वे टू पारो, और ये रास्ता जा रहा है हमारा थिम्पू। नाउ वी आर गोइंग टू थिम्पू। 29 किलोमीटर्स, अरे पुनाखा 101 किलोमीटर्स। वी हैव रीच्ड आवर होटल इन थिम्पू, और अब हम सीधे रूम में आ चुके हैं। तो काफ़ी बड़ा रूम है। फुनचलिंग में तो बहुत छोटा सा रूम था, खैर वो ट्रांजिट होटल कह सकते हो आप। और ये यहाँ पे डिसेंट साइज बैल्कनी है, और ये सामने मेन रोड है। और थिम्पू में मेन मार्केट जो है, व्हाट माय गाइड वाज टेलिंग मी, कि ये इसके उस तरफ है आई थिंक। सो 15-20 मिनट कार ड्राइव है, तो जा सकते हैं। और चलो देखते हैं यार, आज तो आते आते अभी इस वक्त टाइम हो गया है, 4 बज चुके हैं, और अब तो हिम्मत है भी नहीं ज़्यादा घूमने की। सुबह 9 बजे यहाँ पे जितने भी मॉन्यूमेंट्स है सब हैं, उनके टिकट जो हैं वो 9 बजे मिलते हैं, और 5 बजे तक खुले रहते हैं। और आज पूरा दिन ही ऑलमोस्ट हो गया ट्रैवल करते हुए, क्योंकि हम अराउंड कितना आई थिंक 8:30 और 9 के अराउंड हम निकल गए थे, और अब 4 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। सो सब लोग थके भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा हिम्मत भी नहीं है। तो अब आज देखते हैं, बस डिनर विनर करेंगे, और फिर कल हम सारी जो आज भी हमें जो 2 पॉइंट्स कवर करने थे वो हम कल करेंगे। और आई थिंक यहाँ पे जो किंग के जो पैरेलल वो हैं, एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, वो कल शायद हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई 1000 डे फेस्टिवल चल रहा है, तो अभी गाइड ने मेरे को बताया। सो बाकी फिर देखते हैं कल अपनी क्या किस्मत रहती है, दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, और कल का दिन कैसा रहता है। चलो, सो मौसम तो ठीक है यार, मौसम इज़ फाइन एज यू कैन सी, इट्स अ क्लियर स्काई, नॉट वेरी कोल्ड, प्लेजेंट है अभी एज ऑफ नाउ। और उम्मीद यही है कि थोड़ा में भी शायद शाम में या सुबह के टाइम पे थोड़ी हल्की फुल्की ठंड होगी। बाकी जितनी एक्सपेक्टेड थी हमें
सर्दी उतनी लग नहीं रही है यहाँ पे। हमने अपने स्नैक्स में ऑर्डर किया था स्प्रिंग रोल, जिसमें कि आए हैं 2 पीस। आपने ज़िंदगी में कभी ऐसे वेजिटेबल पकोड़े नहीं देखे होंगे। ये वेजिटेबल पकोड़े हैं। खैर चलो, वेज सैंडविच तो वेज सैंडविच की तरह ही दिख रहा है, और स्प्रिंग रोल की तरह दिख रहा है, बट ये तो एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। कैसे हैं? चलो गुड। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि होटल्स में जो तकिए मिलते हैं वो कितने मोटे मोटे होते हैं। तो अब मेरे को नीचे जाना पड़ रहा है रिसेप्शन पे तकियों के लिए बोलने के लिए, क्योंकि जो इंटरकॉम है फॉर रिसेप्शन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो अब जाके उनको ज़रा बोल के आया जाए कि भाई थोड़े पतले तकिए दे दो, कम से कम रात में चैन की नींद तो हो सके, क्योंकि आज पूरे दिन ट्रैवल कर करके थक गए यार। मैं अपने होटल के सामने खड़ा हूँ, एकदम एंट्रेंस गेट पे, और मेरे होटल का जो अपोजिट साइड है, सामने मेन रोड है। अब आप ये देखो, ये मेन रोड है। इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, एक हॉर्न की आवाज़ नहीं आई। मतलब मेरे को यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे होने को आ गए, मेरे को एक हॉर्न अभी तक नहीं सुनाई दिया। मतलब रूम में इतनी शांति है, सिर्फ ये जो गाड़ी के पहिए की आवाज़ या गाड़ी के इंजन की जो भी आवाज़ है, बस वही आवाज़ आ रही है। सो भाई, हम लोगों को बहुत कुछ अभी सीखने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं ना? सो राइट नाउ मैं अभी एक होटल के बगल में एक स्टोर है, द क्लोथिंग हब। ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मैं आ गया घूमने। मैंने कहा चलो थोड़ी देर यहाँ पे घूमा जाए, देखें क्या है। तो यहाँ पे सारा मेरे को तो वही स्टफ़ लग रहा है जैसे होता नहीं है वो जो थाईलैंड और उस तरफ से आता है, यूज्ड कपड़े और उस टाइप का वो है, या नकली, मतलब गलत लेबल, जैसे ये देख रहे हो नॉर्थ फेस, इस टाइप का। चलो अपना तो टाइम पास हो गया, लेट्स गो। सो राइट नाउ मैं एक स्टोर है हमारे होटल के बगल में, द गारमेंट हब है या पता नहीं द क्लोथिंग हब है, कौन सा है। खैर मैं तो टाइम पास करने के लिए चला आया। मैंने कहा यार मेरे को तो ऐसी वॉक करनी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर ज़रा टाइम पास करा जाए। चलो लेट्स गेट बैक टू आवर होटल। दिस इज़ द स्टोर जिसमें मैं अभी होके आया हूँ, थिम्पू क्लोथिंग हब, और ये है हमारा होटल नॉर्डेनमा। रेस्टोरेंट की शक्ल देखी जाए, कहाँ है रेस्टोरेंट? किचन, ओह दिस इज़ द रेस्टोरेंट। ओके चलो 8 बजे यहीं आना है, लेट्स गो। चले भाई डिनर करने? चलो भाई, 2 जनता तो सरक गई, 1 जनता बैठी हुई है। प्लीज़ जनता पार्टी प्लीज़ मूव। चलो टाइम 8 o'clock हो चुका। रेस्टोरेंट से फ़ोन भी आ चुका है और उन्होंने कहा है कि आ जाइए, 8 बज चुका है। इनिशियली वी वर थिंकिंग कि थोड़ा 8 बजे के 5-10 मिनट बाद जाएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम पहुंच जाएं और डिनर रेडी ना हो। बट 8 बजे से पहले ही फ़ोन आ गया रेस्टोरेंट से कि खाना तैयार है, लग चुका है, आ जाइए। सो हम भी एकदम तैयार ही बैठे हुए थे, जस्ट वेटिंग फॉर कि निकले। तो चलो अब करते हैं डिनर। द होटल इज़ आस। पूरे होटल में कोई नहीं है, सिर्फ हम ही हम हैं। ओह BYD का शोरूम दिख रही है ना गाड़ियाँ तो। हाँ, ये BYD की लाइट जली हुई है, उसके ऊपर क्या है ये? नहीं, लाइट नहीं जली हुई इसके ऊपर। ओह माय गॉड, सडन इमरजेंसी हो गई तुम्हारे ऊपर। व्यान, जिस तरीके से ये चांद बादलों के पीछे से देख रहा है, मेरे को तो लग रहा है तुम्हारी पूंछ वूछ तो नहीं निकल रही है। चेक कराओ। नहीं है। हैं? पूछ वूछ तो नहीं है? हाँ ठीक है, अभी तो लड़का हमारा इंसान ही है, भेड़िया नहीं बना है। हैं? वो तो रात के 12 बजे होता है। रात के 12 बजे तुम भेड़िया बनोगे? हाँ। सो डिनर करने के बाद ऐसे ही स्ट्रीट वॉकिंग चल रही है हमारी, देख रहे हैं क्या क्या शॉप्स हैं यहाँ पे। तो जिस एरिया में हम रुके हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसे वाले शॉप्स नहीं है। यहाँ पे थोड़ा मोर ऑफ शोरूम्स और उस टाइप का वो है शॉप्स। और आई थिंक सिटी जो मैंने आपको पहले भी बताया था उस तरफ कहीं पे है। सो
ये कौन आ गया है? पता नहीं क्या बोल रहे हो। अच्छा, पता नहीं अचानक कोई आदमी आके बोलने लगा। एनीवेज, रात के टाइम पे कुछ एक आधा ऐसे एलिमेंट्स दिखते ही हैं। चलो वैसे तो खैर मोर और लेस बड़ा सेफ सा ही है, ऐसा कोई वो नहीं है यहाँ पे, सेफ है, साफ़ सुथरा है, बढ़िया। एन्जॉइंग द नाइट स्ट्रोल।